Respected Shivani Ben, respected Ramesh Bhai, President of Chamber of Chamber of CTC, Mr. Paras Savla, Chamber of BCA, Mr. Nitin Shingala, members, members from Brahma Kumaris, and friends, ladies and gentlemen. It gives me a great pleasure to welcome all of you. You have filled up the hall, the seats with your presence, and also our hearts with the sincere feelings that we have for Amita. My daughter Amita died 28 years ago, but her memories are very fresh and it still encourages us to do good things in life. Friends, it is a certain amount of coincidences which make things happen. And Shivani Ben being here is because of two main reasons. One thing is, of course, Mr. Ramesh Shah, who is a chartered accountant, and he is very high up in the hierarchy of Brahma Kumaris. Because of him, it was possible to get Shivani Ben with us. And second, which all of you might be surprised, is direct tax code. What has direct tax code to do with Shivani Ben? The point is, there was a conference of direct tax code. Before going, I was watching TV and listening to Shivani Ben, and there that message came below that she is going to speak at Baidas Hall for 3 days, or in the next few days it was. Then I met Ramesh Bhai. Now Ramesh Bhai, I don't know whether to call him Ramesh or Ramesh Bhai. We were college mates together. I met him and I told him, Ramesh, you are doing everything in North Bombay. Why are you not doing something in South Bombay? Let us have Shivani Ben here. Next day in the lunch break, he tells me, Pradeep, Shivani is going to speak at Bharati Vidya Bhavan on these 3 dates in the morning. The evenings are free. So I jumped at the opportunity. I said 10th January, suitable, very fine. And that is how we got Shivani Ben here. It is, as I said, one doesn't know what works, what doesn't work. But these coincidences has given us these blessings of Shivani Ben's presence. Friends, last year Shivani Ben was missing. She was not here with us because she had sprained an ankle. So from that time, I have been praying for Shivani Ben's good health to God Almighty so that she does not sprain her ankle again, so that she can come and talk to us this year. And earlier, I was seeking the help of Shivani Ben to reach God Almighty, but now I realize that I have to speak to God and ask Him to exercise His influence on Shivani Ben so that she comes and speaks to us. And friends, I can assure you that God listens to prayers of simple people made, and that is why Shivani Ben is here. I will continue to pray for her good health for a very selfish reason, that she comes and speaks to us every year. Friends, before we start the proceedings, I would request Nitin Shingala, President of BCA, to honor Shivani Ben with bouquet, and also I would request Paras to honor Shri Ramesh Bhai. Our token of love and expression. And may I request Nitin, I think he had an announcement to make. And after that, Ramesh Bhai will introduce Shivani Ben. Very warm welcome to each one of you. We also have with us Sri Narayan Bhai Verma, a very senior past president, and at this very young age he has authored a book on right to information in order to ensure that our government and systems work very well. Right to information is a very important effective tool, a cause to which he is really committed, and
admirable work that he is doing. This book, which is otherwise priced at 150 rupees, is available for 100 rupees outside the hall. When you go out, you may want to take it. Thank you. Friends, as I told you, Ramesh Bhai is a co-student. We were together in Sydenham College from the year 1950. Secondly, he is also very high up in the hierarchy of Brahma Kumaris. And third most important thing, he is Mamaji of our President Nitin Shingala. So these are the three reasons why he is here, and he is going to speak to us, introduce Shivani Ben to us. Ramesh. Om Shanti. On the dais we have got Sister Shivani, my dear friend Pradeep, our Nitin Bhai, our Paras Bhai, and all members of our Brahma Kumari institution and also all the guests. It's my privilege to introduce Sister Shivani. In fact, she is known to all of us because of her classes on Astha channel, Sanskar channel and whatnot. Therefore we know her, but I want to share with you what she has done for the Brahma Kumaris institution. Long back we thought of doing this, spreading this godly knowledge through TV channels also, and therefore we booked Astha channel for half an hour, and Sister Shivani was there to help us. And then slowly and slowly she became popular. Her series also, Awakening with Brahma Kumaris, became very popular. Then we started with Sanskar, then we started with Times also. Then we started ZTV also, ZTV International also and whatnot. Then based on that thing we started also our own studio, Godlywood Studio. And there also she was always helping us in many ways also. Slowly and slowly we developed these things. We started with English and Hindi, and today you see we have got about 8 different languages in which our programs are already organized. We get this guidance from our Sister Shivani, and we are indebted to her also because of her cooperation and her guidance to us also. And it's my pleasure to introduce her this evening. Let us hope so that we will get the benefit of her talk also. She is coming to Mount Abu also, and then we will be having further meetings also there. So I once again introduce Sister Shivani because you don't require introduction, personal introduction of Shivani. You get her personal introduction daily on Astha, Sanskar and other things, other televisions also. Many other cable operators also are reproducing our talks also in various languages also. So it's my pleasure to introduce Sister Shivani. Sister Shivani.
Om Shanti. If anyone has an empty chair next to them, please raise your hand. No empty chair? Yes, you have an empty chair. So someone standing can come there. Would you like to sit in the gallery? Sure. Om Shanti. Om Shanti. Good evening. आज का जो टॉपिक दिया है, आपको टॉपिक पता है आज क्या दिया है? हाँ, एंगर, द एनिमी विद इन. किस किस को आज सारा दिन में एक बार गुस्सा आया? अच्छा, टॉपिक को याद करके नहीं आया. अब 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं. Just sit back and look at yourself and just rewind that scene जो हुआ था आज कल, लास्ट जो भी सीन याद आता है, पूरे के पूरे सीन को अपने सामने लेकर आए. सिचुएशन क्या थी, कौन कौन लोग उसमें थे, उन्होंने क्या किया, क्या कहा, और हमने कैसे रिस्पॉन्ड किया. सारे सीन को देख लेते हैं. अब इस सीन को फिर से देखते. Given another chance, if I get a chance to enact this scene again, look at yourself. Can I do it another way? अगर फिर से वही सीन कल आ जाए सामने, अपने आप को देखें. बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ अपने को देखना है. ओम शांति. How many could see the scene? And how many could see the scene happening a second time? And what was the difference in yourself? How did you see yourself differently? क्या देखा अपने आप को different? देखा या नहीं देखा second time? क्या देखा अपने आप को different? Anybody? क्या देखा different? Was the best option जिस तरह से हमने आज react किया, was that the best way to handle the situation? या एक और option possible था? क्योंकि scene कल फिर आएगा. अगर हम रुक कर reflect करके change नहीं करते, तो हम हर रोज़ उसी तरह से रिएक्ट करेंगे जैसे आज किया था. लेकिन अगर हम रुकते हैं, देखते हैं, there is another option possible, then there is a big chance that tomorrow we will do it a different way. So जिस तरह आज किया, was that the best way or is another way possible? Yes or no? So what was the other way? कैसा देखा अपने आप को? इसका क्या मीनिंग है? कैसे देखा? What did you see yourself? How was the other way?
I'm not going to tell, so you have to tell. How was the other way? How was the other way? No anger नहीं. No anger means how? एक चीज बहुत important है. हाँ जी, sorry. Would have not shouted means what would have I done? Softly. तो एक ऑप्शन है कि मेरी आवाज थोड़ी सी कम हो सकती थी. सेकंड, सॉफ्ट बोलते तो बोल भी कैसे होते थोड़े से? The tone of the words needed to change. Did the quality of the words also need to change? Yes? So they could have been a little soft. तो कौन वॉल्यूम हो गया. Quality of the word, did it need to change? It could be a little sweeter. Good. So little softer, little sweeter, and little lesser. Some words. है ना? तो हमें ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर स्लोगन सिखाते हैं. कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो. ऐसे स्लोगन लगा था एक दिन दीवार पे. एक भाई आए, उसने देखा, पढ़ा, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो. फिर वो पॉज किया और कहता है कम भी बोलना है, मीठा भी बोलना है और धीरे भी बोलना है. तो बोलेंगे क्या अभी उसके बाद? सोच के बोलना पड़ेगा. बिकॉज वी गॉट यूज टू टॉकिंग इन अ वेरी. सो जब हम नॉर्मल में वैसे बात करते हैं तो ऑब्वियसली जब नेगेटिव एनर्जी उसके साथ ऐड हो जाएगी तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और क्वालिटी तो. सो इज इट पॉसिबल टू गो लिटिल डिफरेंटली? व्हाट इज द डिफरेंस कि अभी जब हम बैठे तो हमें वो ऑप्शन दिखाई दे रही है, आज सुबह नहीं दिखाई दी थी. व्हाट वाज द रीजन? फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच ऑप्शन इज बेटर for me and for the other person and for the situation? गुस्सा जब हम करते हैं, हम में से किस किस को लगता है कि हमारे अंदर गुस्से की आदत है? जब हम गुस्सा करते हैं, करते 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 हमारा एक फर्म बिलीफ बन चुका है कि गुस्सा करने से ही हमारा काम हो जाता है. गुस्सा करने से लोग कहना मान लेते हैं. गुस्सा करने से एक डर बना रहता है. गुस्सा करने से सब कुछ फटाफट हो जाता है, विच इज़ ट्रू, हो जाता है. लेकिन गुस्सा करने से और भी बहुत कुछ हो जाता है. ये सब कुछ भी हो जाता है. लोग डर जाते हैं, लोग काम फटाफट कर देते हैं, हम आते हैं तो लोग चुप हो जाते हैं, बड़ा फटाफट सारा कुछ हो जाता है. लेकिन गुस्सा करने से और क्या क्या हो जाता है? डिप्रेशन आ जाता है. हाँ. और क्या हो जाता है? बीपी बढ़ जाता है. अच्छा. और ब्लॉकेजेस भी सारे क्रिएट हो जाते हैं और रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं. नाउ वी हैव टू लुक एट व्हाट वी हैव डन. वी हैव यूज्ड अ मेथड टू गेट वर्क डन. वर्क गॉट डन, हैप्पीनेस गॉट अफेक्टेड, health got affected, relationships got affected, but we got richer because work got done. तो बाह्य रीति से सफलता बढ़ती गई, लेकिन आंतरिक रीति से सफलता कम होती गई. जब हम गुस्सा करते हैं तो नुकसान ज़्यादा किसका होता है? जो डांट रहा होता है या जो डांट खा रहा होता है? अगर आपके सामने एक सीन हो अभी, एक व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से किसी को डांट रहा है, तो योर सिंपैथी गोज आउट टू हु? आपकी सिंपैथी किसके साथ जाती है? बेचारा कितनी डांट खा रहा है. मेरी सिंपैथी उसके साथ नहीं जाती जो डांट खा रहा है. मैं सोचती हूँ बेचारा कितना गुस्सा कर रहा है. ज़्यादा इफेक्ट किस पर होता है? जो डांट खा रहा है या जो डांट रहा है? श्योर. एंड सीक्रेट ये है कि अगर वो लोग हैं जो बार बार डांट खाते हैं आपकी, तो थोड़े टाइम के बाद उनके ऊपर तो बिल्कुल कोई असर ही नहीं पड़ता. जैसे आप अभी मुस्कुरा रहे हैं, वो तब मुस्कुराते हैं.
हाँ, आपका ड्राइवर है, कुक है, स्टाफ है, कलीग है, इवन बच्चे आफ्टर सम टाइम कहेंगे मम्मी शुरू हो गई, ठीक, कोई बात नहीं. Which means the immunity system of the other person to take that energy is gone very high. क्योंकि उनको पता है कि अभी ये इनका पैटर्न है, ये ऐसे ही चलेगा. लेकिन जो कर रहा है वो उस एनर्जी से बच नहीं सकता. If you shout at me, मुझे उस पर इतना प्रभाव डालना है अपने ऊपर, वो मेरी चॉइस है. लेकिन आप पर कितना प्रभाव पड़ना है वो आपके पास चॉइस नहीं है. डिफरेंस क्लियर हुआ? इफ यू शाउट एट मी, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ना है, आई हैव अ चॉइस. लेकिन आप पर उस गुस्से का कितना प्रभाव पड़ना है, यू डू नॉट हैव अ चॉइस. मैं उस बात को कितना सोचूंगी, फिर कितनी देर उसको अंदर करती रहो, रोती रहो, वो मेरी हेल्थ डिसाइड करेगा. आई हैव अ चॉइस. लेकिन आपने एक बार वो गुस्सा क्रिएट कर दिया, आपकी हेल्थ पर उसने असर करना ही करना है. किसी भी हॉस्पिटल में आज हम चले जाएं तो एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है, वर्कर हेल्थ चेकअप नहीं होता. मतलब जो डांट खा रहे हैं उनको नहीं हो रहा डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल नहीं हो रहा. किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को हो रहा है? जो डांट रहे हैं. तो फिर छोड़ देते हैं करना आज से. How many feel it will be possible to live and to work without using the weapon of anger? सोच रहे हैं इधर इधर, इसने भी नहीं. पर confidence, how many feel it's possible to get work done and to live with the same people without using the weapon of anger? Possible? So should we think of today how to finish up and give it up? Because otherwise 1 hour is a waste. People will listen to 1 hour and then they'll go out and say, लेकिन गुस्से के बिना काम थोड़ी होता है. So then it's a waste. First and foremost, I have to believe कि इसके बिना काम हो सकता है या नहीं हो सकता है. अगर हम कहते हैं अपने आप को अभी, लेकिन कभी कभी तो करना ही पड़ता है, थोड़ा सा तो करना ही पड़ता है. सो आई एम गिविंग माई माइंड द परमिशन, तुमको करना अलाउड है. एंड देन इट्स गोइंग टू यूज दैट वेपन एवरी टाइम. आई हैव टू गिव माई माइंड अ वेरी सीरियस इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू क्विट दिस टुडे. आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू एन एपिसोड ऑन एडिक्शन एंड द डॉक्टर सेड कि कोई भी एडिक्शन छोड़ने के लिए कम नहीं कर सकते, खत्म करनी पड़ेगी. कम नहीं कर सकते, आपको उसको खत्म करना पड़ेगा. तो गुस्सा करना भी तो एक, आपको मालूम है गुस्सा करना भी एक एडिक्शन है. कुछ लोग ढूंढते रहते हैं रीजन किस पे गुस्सा करें. अगर उनको गुस्सा करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, दे बिकम वेरी अनईजी बिकॉज द माइंड एंड द बॉडी गेट्स यूज्ड टू बीइंग इन दैट एनर्जी. So we are addicted to our emotions and we have seen the result of that emotion, and so we are ready to now quit. Should we quit anger? Reduce nahi, quit anger. It's difficult but we can try. हाँ जी? It's difficult but we can try. What's difficult? चलो. Absolute conscious living करना पड़ेगा. हाँ जी? On the spur of the moment. So what I'm going to do today is I'm going to prepare myself for the day today that's going to come. Right? आज जो सीन आया उस समय हमने गुस्सा किया. अभी जब हम साइलेंस में बैठे हमने उस सीन को देखा, हमने गुस्सा नहीं किया. What was the difference between sitting now and looking at the situation and when the situation was actually happening? What was the difference? जब यहाँ बैठे थे अटेंशन अपने ऊपर था. जब एक्चुअल सीन हो रही थी तो अटेंशन दूसरे ऊपर था. जब यहाँ बैठे थे तो रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि हम ठीक से कैसे परफॉर्म करते हैं एक सीन को. जब एक्चुअल सीन होता है तो ये देखते हैं कि दूसरे को कैसे ठीक होना चाहिए. तो सबसे बड़ा गुस्से का कारण ये है कि जीवन का एजेंडा बना लिया दूसरों को ठीक करना.
किस किस ने ट्राई करके चेक कर लिया कि दूसरे को हम चेंज नहीं कर सकते? हाउ मेनी ऑफ यू फर्मली बिलीव कि हम दूसरे को चेंज नहीं कर सकते? इंस्पायर कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, डायरेक्शन भी दे सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। श्योर? सो देन व्हाई डोंट वी स्टॉप ट्राइंग? जस्ट चेक, एक दिन भी अगर चार्ट रखेंगे ना अपना कि हम कितना सारा दिन दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं, एंड जब वो चेंज नहीं हो पाते तब हमें ऑब्वियसली क्या होने लगता है? गुस्सा। नॉर्मली कारण क्या है? व्हाट इज द मूल रीजन? व्हाई डू वी गेट एंग्री? They are not doing things according to my way. How many feel this is the reason for getting angry? Main reason is situation and people are not according to me. Now let me change the programming. I have created a programming here. जब situations और लोग मेरे हिसाब से होंगे then I will be fine. जब situations और लोग मेरे हिसाब से नहीं होंगे तो गुस्सा करना। What's the programming? जब situations और लोग मेरे हिसाब से नहीं होंगे तो गुस्सा करना। What's the word? Natural है। Very good. तो मन को क्या बोल दिया? Natural है, allowed है, जायज़ है, necessary है। This is a programming for the mind. The mind is like a child. Just rewind your time to when your first baby was born. The child knew nothing. आपने उसको जो सिखाया वो सीखता गया। आपने कहा ये चेयर, उसने कहा चेयर। आपने कहा ये टेबल, उसने कहा टेबल। अगर आप टेबल को चेयर बोलते वो भी जीवन भर टेबल को चेयर बोलता, जब तक वो बड़ा होकर फिर किसी और से सीखता। मन भी एक बच्चा है। आप उसको जो बोलेंगे, जो सिखाएंगे वो बिल्कुल वैसा ही चलेगा। हमने उसको कहा देखो मन, जब लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार होंगे हम होंगे खुश, जब वो नहीं होंगे तो गुस्सा करना तो नेचुरल है। इट ओबेज, इट डज इट एवरी टाइम। इज इट पॉसिबल दैट पीपल एंड सिचुएशंस विल बी अकॉर्डिंग टू मी? Is it possible that people and situations will be according to me? And people means my spouse, my children. Is it possible they will be according to me? So what instruction have I given my mind? See the futility of the programming that has happened. Reality भी पता है कि लोग और situations हमारे अनुसार नहीं हो सकते, और फिर भी programming क्या कर दी कि जब जब हमारे अनुसार नहीं होंगे तो गुस्सा करना नेचुरल है। मतलब खुद ही मन को कह दिया कि इस जीवन की यात्रा में गुस्सा तो करना ही पड़ता है। What is the main reason why people and situations are not like me? Why are people not like me? जीवन कितनी सिंपल हो जाती अगर हम सब एक जैसा सोचते, एक जैसा बोलते, एक जैसा करते, बट नहीं होता। बट वाई नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? Why people are not like me and I want them to be like me, and then I will get angry because they have not performed the way I want them to be, because my way is the right way. How many feel my way is the right way? सपोज ये प्रोग्राम का टाइम 6:15 बजे का था, ठीक है, 6:15, ओके। नाउ लेट्स सी अ सिंपल वर्ड लाइक पंक्चुअलिटी। For someone, the definition of punctuality would be 6:15 means we will reach by 6, ठीक है। 6:15 मतलब हमें 6 बजे पहुंच जाना चाहिए। ये एक की डेफिनेशन ऑफ पंक्चुअलिटी है। दूसरे एक की डेफिनेशन ऑफ पंक्चुअलिटी होगी 6:15 मतलब 6:15 डॉट। तीसरे एक की डेफिनेशन ऑफ पंक्चुअलिटी होगी 6:15 ना। और हम जैसों की थी हम 5:30 ही आ गए। अब राइट कौन है इस सब में से? 5:30, 5:45, 6, 6:15, 6:30, 6:45 बज गए, अभी भी आ रहे हैं भाई बहने। विच वन इज राइट?
who is right out of these? क्योंकि सारा दिन कॉन्फ्लिक्ट इसी पे होने वाला है, क्योंकि my definition of punctuality and your definition of punctuality will be different. My definition of honesty, your definition of honesty will be different. My definition of sincerity, your definition of sincerity will be different. अब हम दोनों कहेंगे हम सिंसियर हैं, लेकिन हम एक दूसरे के अनुसार सिंसियर नहीं हैं. Which one of these is right? 6, 6:15, 6:30? Which one is right? बताओ. सारा दिन तो कहते हैं my way is right way. Now which one is right out of these? अब अगर हम तीनों को ले आए सामने and तीनों को कहें रीजन बताएं for their definition of punctuality, all three will have a good logic for why their timing is right. होगा या नहीं होगा? 6 बजे वाला क्या कहेगा? कहीं भी जाने के लिए 10-15 मिनट मार्जिन तो रखनी चाहिए ना, हमने 10-15 मार्जिन रखी. जो डॉट वाला पहुंचेगा वो कहेगा मुझे पता है मैं डॉट टाइम पे पहुंच जाता हूँ, मुझे जल्दी पहुंचने की ज़रूरत नहीं. जो थोड़ा लेट आएगा वो कहेगा आप वेले हो, मेरे पास तो बहुत काम है, इतनी जल्दी कौन आके बैठता है. उसके पास उसकी अपनी लॉजिक है. इफ़ द पर्सन इज स्पीकिंग थ्रू हिज ओन लॉजिक एंड इफ वी आर गोइंग टू से यू आर रॉन्ग, डू यू थिंक द पर्सन इज गोइंग टू रेडी टू एग्री टू दैट? Because for them, what is wrong for us is very, very right for them. जिस दिन यहाँ ये एक चीज़ फिट हो गई, बहुत सारी चीज़ें बाहर ठीक हो जाएंगी. जो चीज़ हमें दूसरे में गलत लग रही है, दूसरे को वो चीज़ बिल्कुल सही लग रही है. क्यों हम लोगों की डेफिनेशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग डिफरेंट क्यों हैं? Why are we different? Why are we different? Is it natural for different souls to think differently? Yes? Sure? Is it possible that two people can wake up in the morning and think identical? No. So दोनों में से right कौन होगा फिर? दोनों में से राइट कौन होगा? सपोज आई wear white, okay, and I can give you a 1-hour lecture now why white is a very nice color to wear, scientifically, environmentally, socially, financially also. टेंशन भी नहीं होती सुबह सुबह अलमारी में से क्या निकालना है, सब एक जैसा है, कुछ भी खींच लो. See, mind is so relaxed and easy. Give you 1 hour good advice on why wearing white is a good color. Will you start wearing it from tomorrow? I'm telling you for your good. आपके अच्छे के लिए बताया. हम कितनी बार सारा दिन दूसरों को कहते हैं तुम्हारे अच्छे के लिए मैं कह रही हूँ ये, तुम्हारे को समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हारे अच्छे के लिए जो मैं कह रही हूँ. दूसरा वाला कहता है, फिर हम कहते हैं इसको समझ ही नहीं आ रहा कुछ. हमें लगता है समझ आना मीन सामने वाला वो करना शुरू कर देगा. देयर इज अनदर ऑप्शन कि समझ आ गया लेकिन करना नहीं है मुझे वो वाला. आर यू रेडी टू वेयर वाइट फ्रॉम टुमारो? व्हाई? 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 We have our own personal choice and so has everyone else. Each one's taste is different, each one's thought is different, each one's perspective is different. So which one is right? Which one is right? White is right for me. मैंने छोटी सी गलती क्या की, फॉर मी हटा दिया एंड मैंने कहा वाइट इज राइट एंड वेरी सून आई स्टार्टेड सेइंग ओनली वाइट इज राइट. तो फिर बाकी सारे कलर कैसे लगने लगेंगे? काला पीला नीला क्या रंग पहनते हैं, गलत. सो व्हाट इज द वाइब्रेशन दैट आई विल सेंड आउट टू एवरीवन एल्स हु इज नॉट वेयरिंग वाइट? यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग. वहाँ से कौन सी एनर्जी आने वाली है? यू आर रॉन्ग. कॉन्फ्लिक्ट. अभी जो फ्लावर्स दिए सबने वेलकम करने के टाइम,
आप में से किस किस को वो फ्लावर्स अच्छे लगते हैं? How many of you like that bouquet of flowers which is there on the table? I don't like them at all. Is it okay? Is it okay? Is it okay that I don't like those flowers at all? Is it okay? Is it okay that I don't like those flowers at all? Is it okay? No. Why no? No, I'm asking you, I don't like those flowers at all. Is it okay? No. बहुत ही बेकार लगते हैं, गंदे. Is it okay? अंदर से किसी के अंदर ये थॉट नहीं हो रहा, अजीब है, इतने सुंदर फ्लावर अच्छे नहीं लगते? आती है थॉट या नहीं आती है? दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ रिजेक्शन दैट वी सेंड टू द अदर पर्सन. कि अजीब है, जो मुझे अच्छा लगता है वो इनको अच्छा कैसे नहीं लगता? एंड द मिनट यू सेंड मी दैट वाइब्रेशन कि आप अजीब हो, आपको फ्लावर्स अच्छे नहीं लगते, देन आई एम गोइंग टू सेंड यू द वाइब्रेशन, अजीब हो, फ्लावर्स क्यों अच्छे लगते हैं? And this we are sending to each other. कि आप अजीब हो, आप अजीब हो, आप गलत हो, आप गलत हो, आप बुरे हो. क्यों? क्योंकि आपकी सोच मेरी सोच से मैच नहीं कर रही है. आपको फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते. इज दैट ओके? दोनों में से सही कौन है? दोनों में से सही कौन है? थोड़ा ज्यादा सही कौन है? हाँ जी, very rare person. I am one of those rare person who doesn't like flowers. Now imagine if that rare person turns out to be your husband. So you say, of all the people I had to get married to this rare person. You see, this is what we find anything which is different from us very difficult to understand. Why does this happen? Because यहाँ पर आत्मा जो है वो एक लंबी जर्नी पर चल रही है. विद इन दिस लाइफ टाइम, आपके जीवन के ये 30, 40, 50 साल, क्या दो लोगों के जीवन आइडेंटिकल होते हैं? नहीं. तो दो जीवन के सिचुएशंस, एक्सपीरियंसेस अलग, जो संस्कार बने वो अलग. विद इन 50 years ऑफ वन लाइफ टाइम, अगर यहाँ की रिकॉर्डिंग अलग होगी, अब थोड़ा सा रिवाइंड करें, अनदर 100 years ऑफ अनदर लाइफ टाइम, and 100 years of another lifetime, and 100 years of another lifetime, and let's say so many lifetimes, so many recordings. कितने संस्कार होंगे यहाँ पे? कितने संस्कार होंगे यहाँ पे? विजुअलाइज कर सकते हैं? एंड ये दो अलग अलग रिकॉर्डिंग के दोनों की शादी हो गई. ठीक है? एंड नाउ दे बोथ वांट that both of us should be the same way. And 2 साल के बाद इनके घर एक और नई सीडी आई, उसकी एक अलग जर्नी थी लंबी. But they said, हमारा बच्चा तो कैसा होना चाहिए? हमारे जैसा होना चाहिए. Spirituality, when it gives this one answer, कि each one is a soul on a long journey. Long journey. 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 साल, हमें नहीं पता. उतने 1000 साल में कितने रिकॉर्डिंग्स. लुक एट द सोल लाइक द सीडी, जिसपे इतने सारे गाने रिकॉर्डेड हैं. दो लोगों के गाने बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं. एंड फिर इन दो लोगों की शादी हो गई तो दोनों के अपने अपने गाने बजेंगे ना? बजेंगे या नहीं बजेंगे? लेकिन दोनों क्या चाहते हैं कि दूसरी सीडी पे वही गाना बजना चाहिए जो मेरे ऊपर गाना है. एंड दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. Just look at each person. This is a soul on the journey. पिछले महीने पाकिस्तान में कुछ लोग घुसे और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें कितनी आत्माओं ने शरीर छोड़ा. ठीक है? Just visualize, वो आत्मा जिसने उसमें शरीर छोड़ा होगा उसकी लास्ट स्थिति क्या होगी?
विजुअलाइज लास्ट स्थिति कैसी होगी? फियर, पेन, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, जो भी। वो आत्मा ने जिसने वहाँ शरीर छोड़ा तो जाके किसी गर्भ में ही तो जगह ली ना। तो वो आत्मा हमारे घर बच्चा बनकर आ सकती है। वो बच्चा कैसा होगा? वो बच्चा कैसा होगा? डरा हुआ, सहमा हुआ, कोई चीखेगा तो वो डर जाएगा। अब हम पेरेंट होंगे कॉन्फिडेंट, एंड हमारा बच्चा कैसा पैदा हुआ? तो हम उस बच्चे को क्या करना शुरू कर देंगे? कैसा बच्चा है? डरपोक, क्रिटिसाइज भी करेंगे, रिडिक्यूल भी करेंगे, गुस्सा भी हो जाएंगे उससे। क्यों? क्योंकि उसका संस्कार हमारे संस्कार से सेम नहीं है। इज इट नेचुरल कि जो आत्मा ऐसा ट्रॉमा देख कर आएगी उसके अंदर डर, गुस्सा, रिजेंटमेंट, पेन, इज इट नेचुरल दैट इज गोइंग टू बी देयर? यस। सो इफ यू कम टू नो कि इस आत्मा का ये पास्ट है तो उसके संस्कार को एक्सेप्ट करना ईजी हो जाता है। नाउ ओनली टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा का एक पास्ट है, हर आत्मा का एक पास्ट है। जो मेरा हस्बैंड है, वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे कलीग्स हैं, दे आर सोल्स ऑन अ जर्नी, और हर एक का अपना अपना एक पास्ट है। पास्ट नॉट ओनली ऑफ दिस लाइफ टाइम बट पास्ट ऑफ many lifetimes, and that is why they carry those sanskars. Is it possible that their right and my right can be the same? So जो चीज़ possible ही नहीं उस पर गुस्सा करना, just bring all your close people in front of you right now, and instead of looking at them as my spouse, my child, just look at them with compassion, soul on the journey. पता नहीं इनके साथ पीछे क्या क्या हुआ था, इसलिए आज इनके अंदर हर्ट होने का संस्कार है, इसके अंदर रिजेक्शन का है, इसके अंदर गुस्से का है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस का है, इसके अंदर इन्फीरियर फील करने का, अलग अलग संस्कार है। जिसका जो संस्कार होगा उसको वो सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ उसी संस्कार से दिखेगी, एंड उनके लिए वो ही जो दिखेगा वो बिल्कुल right होगा, even if the whole world finds it wrong. My sanskar will become like a lens or like a filter. So because my sanskar and your sanskar will be different, so my filter and your filter will be different, so my perspective and your perspective will be different. Which one will be right? Which one will be right? सपोज आपके लेंस का कलर ग्रीन, मेरे लेंस का कलर ब्लैक, और फिर हम आकर इस बेडशीट को देखते हैं, टेबल क्लॉथ को देखते हैं, आप कहेंगे ग्रीन। सपोज माई फिल्टर इज ब्लू, आई विल से ब्लू। विच वन इज राइट? विच वन इज राइट? नाउ आप मुझे समझाने की कोशिश करते जाएं कि ये ब्लू नहीं, ये ग्रीन है। क्या लगता है कब तक समझ में आएगा मुझे? क्योंकि हम बहुत ट्राई करते हैं दूसरों को समझाने के। तुम बैठो, आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू, वेट, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। Even if we want to try and explain something to someone, first we will have to understand their sanskar and then show it according to their sanskar. If you show someone a perspective according to your sanskar, keep trying for a lifetime. It's not possible. And then we say, we just cannot understand each other. Chhod. We are not able to understand each other. It's not that we are not able to understand each other. We are not able to accept that we are going to be different. We feel the world will be beautiful when we become identical. जब एक इतनी सी बात क्लैरिटी हो गई ना, तो गुस्सा करने की परसेंटेज, क्योंकि गुस्सा करना फिर बहुत फ्यूटाइल दिखाई देगा, उसके बाद बहुत फ्यूटाइल दिखाई देगा। Let's shift from expecting things from people to accepting people the way they are. गुस्सा सिर्फ इसी बात पर आ रहा है कि हमारी certain expectations उनसे हैं, वो फुलफिल नहीं होती हैं, तो हमने रिएक्ट करने की अपने आप को लिबर्टी दे दी।
कौन से संस्कार हैं दूसरों के जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, जो हमें लगता है इसमें मुझे गुस्सा आता है? कौन सा संस्कार है? एनीबडी? झूठ बोलना। यस। और हाँ जी, बेवकूफ बनाना। और कौन सा संस्कार है दूसरे का जिस बात पर हमें गुस्सा आता है? हाँ? अपनी बात मनवा लेना। हमें परमात्मा कहते हैं, हमारे जो सेंटर पर महावाक्य पढ़ते हैं उसको मुरली कहते हैं। तो एक मुरली में परमात्मा ने कहा, बच्चे कहते हैं कि कोई गुस्सा करता, कोई झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो परमात्मा ने कहा, उसने झूठ बोला, चलो उसने गलती की, चलो उसने झूठ बोला, गलती की, और आपने गुस्सा किया तो आपने क्या किया? So does one wrong have the right to correct another wrong? Even to correct another wrong, I will have to first be in the right. दूसरे की वो रिकॉर्डिंग है लंबी, इस जन्म की या कई जन्मों की, उनकी रिकॉर्डिंग को न एक्सेप्ट करके अपनी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब कर देना। See people, see their संस्कार and then learn how to live with that संस्कार। रोज उस संस्कार के साथ उलझना, इंटेंगल होना। नया कोई व्यक्ति हो फिर भी ठीक है, लेकिन जो रोज वाले लोग हैं उनके साथ रोज उन्हीं बातों पे उलझना, छोटी छोटी बातों पे उलझना। सिर्फ अगर हम छोटी छोटी बातें भी छोड़ दें ना, और फिर हम ये कहें चलो जब बड़ी बात होगी तब हम गुस्सा करेंगे, छोटी छोटी बातों को भी छोड़ दें तो 80% तो खत्म हो जाएगा। इवन छोटी छोटी बातें, ये ऐसे क्यों रखा, ये इधर क्यों नहीं रखा, घर गंदा क्यों किया, सूटकेस यहाँ क्यों रखा, छोटी छोटी विच आर इनसिग्निफिकेंट, दे आर नॉट इश्यूज, लेकिन वी गेट इनटू द पैटर्न ऑफ बीइंग लाइक दैट। छोटी छोटी वाली बातों को छोड़े। वी नीड टू क्रिएट कंपैशन फॉर दैट अदर सोल। अगर हम बार बार दूसरे को एनर्जी ऑफ रिजेक्शन भेजेंगे तो वहां से कौन सी एनर्जी आने वाली है? सपोज आपको आदत है कि आपने घर को एकदम साफ रखते हैं पूरा दिन, फिर शाम को वो ऑफिस से घर आते हैं, घर आए जूते उतारे यहाँ फेंका, फिर सॉक्स उतारी यहाँ फेंका, फिर लैपटॉप बैग सामने फेंका उधर, फिर छोटा सा एक कॉन्वर्सेशन हो जाता है। एंड कई बार कई घरों में वो रोज़ होता है। एंड किसी से पूछो कितने साल से हो रहा है, कहते पहले दिन से। एंड दे आर फाइन विद इट दैट दिस इज गोइंग टू गो ऑन every day. It becomes our pattern of living. Now if I ask the lady of the house कि जितना लड़ने में एनर्जी जाती है उससे कम एनर्जी लगेगी सिर्फ वो 2-4 चीज़ें उठाकर साइड पे रखने में, कहते हाँ वो तो हमें मालूम है, लेकिन उनको ठीक कौन करेगा? So our agenda for life has become to change people to be the way we want them to be. And people are not going to change because they are very comfortable being what they are. Someone will only change the day they feel they are not comfortable the way they are. They are not going to change for our comfort. They will only change for their comfort. So we have only one choice. Either we accept them the way they are, or we keep cribbing and getting irritated and complaining the whole day. एंड वो करते करते हमारी कितनी सारी एनर्जी, इरिटेशन, गुस्सा इज द ईजीएस्ट फॉर्म टू डिप्लीट सोल पावर। बैटरी को ऐसे डिस्चार्ज करना हो ना, उसको ईजीएस्ट तरीका है गुस्सा कर लिया। गुस्सा करने के बाद कई बार एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है, घर में स्पेशली। जनरली वो होने के बाद लोगों के घर में साइलेंस हो जाता है थोड़ी देर के लिए। आप में से किस किस के घर में साइलेंस होता है एक झगड़े के बाद? अच्छा, कितनी देर चलता है साइलेंस? कितनी देर चलता है? क्या कहा भाई साहब ने? फ्यू डेज? अच्छा, फुल डे। ओके, वो भी अब डिफरेंट डिफरेंट। कौन राइट है इनमें से? राइट कौन है
किसी के घर में 1 hour साइलेंस, किसी के घर में few hours ऑफ साइलेंस, किसी के घर में 1 day ऑफ साइलेंस, किसी के घर में few days ऑफ साइलेंस. Which one is right? जब हम साइलेंस में जाते हैं तब बैटरी बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड पे डिप्लीट होती है. गुस्सा करने में भी उतनी नहीं डिप्लीट होती जितना उसके बाद के साइलेंस में डिप्लीट होती है, क्योंकि जब मुख बोलना बंद करता है तब मन बहुत फास्ट चलना शुरू हो जाता है. एंड देन वी आर हिटिंग एरोज एट द अदर पर्सन, एंड द सेम इज हैपनिंग बाय द अदर पर्सन टुवर्ड्स अस, and it affects not just the two of us, but it affects every member of that family, and mostly other members of that family are children. And बचपन से आदत कैसे डाली, जाओ पापा को बोलो खाना बन के आ जाए, क्योंकि हमने तो बोलना नहीं. फिर वो बच्चा बहुत प्यार से, छोटा बच्चा है ना, कितना क्यूट होता है, प्यार से जाता धीरे धीरे पापा के पास, खाना बन गया, पापा बोलता है बोल दो मुझे भूख नहीं है. उसको समझ ही नहीं आता, वो प्यार से धीरे धीरे इधर चल के बोलना आता है उनको. We don't realize what we are doing. This same child, after growing up, when that child will not get things the way he wants, he will stop talking to us. उसको सिखाया किसने? उसको सिखाया किसने? हमने. Is it possible झगड़ा हुआ, अगर हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आर्ग्यूमेंट हुई, जो काम कुछ घंटों बाद करना है वो नेक्स्ट मिनट कर लें? Is it possible? How many of you feel you can come back to normal after a conflict immediately? Anji? Please pause today and make this a way of living and try it out what happens. Anji? Sorry भी बोलने का मन नहीं है, just normal हो जाओ. साइलेंस में क्या होता है, हम कहेंगे खाना नहीं खाना अब मैंने ये नहीं करना, और नॉर्मल हो गए तो हमने तुरंत क्या कहना, चलो खाना खाते हैं. लेकिन ये पहले कौन कहेगा? ये पहले कौन करेगा? फिर हम कहते हैं गलती तो लेकिन इस बार उनकी थी. अब आज एक चीज पक्की करनी है कि गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? गलती दोनों की नहीं थी, सिर्फ दो अलग अलग नजरिए थे, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव थे, और दोनों चाहते थे कि दूसरा चेंज हो जाए, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं झुका. गलती किसी की नहीं थी. अब पहले कौन बात करे? कौन बात करे पहले? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर एक बार मैंने किया तो फिर हर बार मुझे करना पड़ेगा? When the mind gives questions and arguments like this, counter it and say, har baar I will do it. Why will I do it every time? Because the happiness and the health of me and every member of my family is bigger than my ego. वो ही व्यक्ति अगर कल उनकी ब्लड रिपोर्ट में आ गया कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, हमारी पूरी जीवन उनके अराउंड रिवॉल्व करेगी. लेकिन आज हमारे इस साइलेंस की वजह से ही कोलेस्ट्रॉल हाई होता है. वहाँ पे होता है या नहीं होता? तो बीमारी आने के बाद क्यों ध्यान रखना है? बीमारी ना हो उसका क्यों नहीं ध्यान रख सकते हम? तो क्या हम अपने रिश्तों से ऊपर अहंकार को नीचे शिफ्ट करके और रिश्तों को ऊपर शिफ्ट कर लें? थोड़ा सा है या नहीं है? अहंकार हमारे अंदर है, लेकिन उसको कहाँ रखना है? आज हमने अपने अहंकार को रिश्तों से ऊपर कर दिया. इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू नॉर्मल इमीडिएटली? करके देखना एक बार. एंड डोंट वेट, लेकिन मैंने बात की, उन्होंने तो की नहीं. वी आर नॉट टू चेंज एनीवन एल्स. आई एम ओनली गोइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ. आई विल कम बैक टू नॉर्मल. मेरे नॉर्मल होते ही मेरी एनर्जी फील्ड क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी. घर की वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी. तो सामने वाले का भी नॉर्मल होना ईजियर हो जाएगा. डू यू थिंक इट विल कंजर्व अ लॉट ऑफ एनर्जी? Will it conserve a lot of energy? Yes.
This can happen at home, this can happen at workplace, this can happen with anybody. जब साइलेंस में चले जाते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं, very very toxic energy goes to other person. We don't need this. हमारे पास ऑलरेडी ऊपर बहुत सारे इश्यूज हैं रिजॉल्व करने के लिए. ये अननेसेसरी एनर्जीज एक दूसरे की तरफ नहीं फेंकनी है. इक्वेशंस निकालो कौन सी सेट करनी है आज के लिए. फर्स्ट, every soul is different right from their perspective. We cannot change them. We can show them our perspective. अगर आप कहते हैं ये ग्रीन है, मैं कहती हूँ ये ब्लू है, अगर आपने मुझे कहा मैं गलत हूँ तो मैंने भी कहना है आप गलत हैं. अपने बच्चों को सारा दिन में कितनी बार कहते हैं कि वो गलत है? How many times we say for our children कि ये गलत है? सोचो, कहते नहीं कहते? जितने बजे वो सोते हैं रात को वो गलत है, जितने बजे वो उठते हैं सुबह वो गलत है, जिस तरह का खाना वो उनको पसंद है वो गलत है, कपड़े जो पहनते हैं वो गलत है, सारा दिन फेसबुक पे व्हाट्सएप पे वो गलत है, दोस्त तो उनके सारे ही गलत हैं, जिस स्पीड पे वो गाड़ी चलाते हैं वो भी गलत है. एवरीथिंग इज योर रॉन्ग, योर रॉन्ग, योर रॉन्ग, योर रॉन्ग. वहाँ से क्या आने वाला है? वहाँ से क्या आने वाला है? यू आर रॉन्ग. एंड देन द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप start saying you're wrong to the other person. आज कितने बच्चे कहेंगे अभी घर जाएंगे ना तो उनके शुरू हो जाएगा. मतलब हमारी वैल्यूएबल एडवाइस भी उनको कैसी साउंड करती है? What is the reason that the purest intention, such good valuable advice for a child, उसके कानों को अच्छी नहीं लगती है? क्यों नहीं अच्छी लगती? क्यों नहीं अच्छी लगती? Suppose I buy the most expensive gift for you, बहुत महंगा है, उसको बहुत अच्छे से रैप भी किया, सब कुछ किया, and then I come to and you say हैप्पी बर्थडे, लो. तो आप गिफ्ट को क्या करेंगे? देखेंगे भी नहीं, क्योंकि गिफ्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? एनर्जी, वाइब्रेशन. हमारा गिफ्ट उनके लिए बहुत अच्छा है, हमारी एडवाइस उनके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो एनर्जी कौन सी जा रही है? आप गलत हो, सुधर जाओ. तो वो हमारी एडवाइस लेने के लिए रेडी नहीं है. पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, लेकिन बच्चे कुछ घरों में संडे को पेरेंट्स सुबह 6 बजे उठते हैं, बच्चे 8 बजे उठते हैं. तो उस घर में पेरेंट बच्चे को कहेगा 8 बजे कोई उठने का टाइम है, 6 बजे उठना चाहिए. कुछ घर में संडे को पेरेंट्स 8 बजे उठते हैं, उस घर में बच्चे 10 बजे उठते हैं. उस घर के पेरेंट्स बच्चों को कहेंगे 10 बजे कोई उठने का टाइम है, 8 बजे उठना चाहिए. कौन सा टाइम राइट है? कौन सा टाइम राइट है? जितने बजे हम उठते हैं. एवरीथिंग दैट वी डू इज़ राइट एंड व्हाट यू डू इज़ रॉन्ग. तो वहाँ से क्या एनर्जी आने वाली है? गाड़ी में उनके साथ बैठे, किसी के साथ, किसी को कहा इतना धीरे चला रहे हो, थोड़ा फास्ट चलाओ. फिर उसने फास्ट चलाना शुरू कर दिया, इतना फास्ट चला रहे हो, थोड़ा धीरे चलाओ. मतलब कौन सी स्पीड पे चलाओ? जो मुझे राइट लगती है. वी आर सो फिक्स्ड विद दिस आइडिया. Why? Because we will only find that right. But now gradually we will have to open the mind and say that the other person is going to have a different definition of right. Parents right होते हैं और बच्चे छोटे जब थे बच्चे तो वो घर आके अपनी सारी चीज़ें बताते थे ना. आज स्कूल में ये हुआ, आज ये हुआ, जो हुआ, बड़े क्यूटली वो सारी बातें बताते हैं आके. जब वो थोड़े से इतने हो जाते हैं तब हम उनके गोल गोल घूमते हैं. आज क्या हुआ, आज किधर गए थे, आज क्या किया.
Where did the change happen? Such a beautiful relationship. वो सब कुछ आकर बताते थे, आज पूछने पर भी नहीं बताते हैं, और फिर कई बार तो झूठ भी बोल देते हैं। क्या बदला? क्या बदला? वही पेरेंट, वही चाइल्ड, सब कुछ बताते थे, आज पूछने पर भी नहीं बताते, बोलते बाहर जाओ, दरवाज़ा बंद करो, फ़ोन पे पासवर्ड है, फुल सिक्योरिटी, प्राइवेसी। क्या बदला? What happened? What happened? Relationship is the same. What happened? जब वो छोटे थे और वो आके सब बताते थे, तो हम उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते थे, हाउ स्वीट, आज ये हुआ। तो द सोल वॉज गेटिंग एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन, अप्रूवल विच एवरी सोल नीड्स। लेकिन जब वो इतने हो गए तो उनकी बातें बदल गई। एक दिन उस बच्चे ने आकर कहा, मम्मी आपको पता है आज हमने क्या किया? हम स्कूल बंक करके पिक्चर देखने चले गए आज। आप ऐसे नहीं स्माइल किए थे उस दिन, किया होता तो वो अभी तक सारी बातें आकर बताते हैं। द चाइल्ड गेट्स रिजेक्शन। उसको नहीं पता कि उसने क्या गलत किया, क्योंकि उसके लिए तो स्कूल बंक करके पिक्चर देखना, बिकॉज एवरीवन वाज डूइंग, सीम्ड वेरी वेरी राइट। उसने अपना राइट किया, घर आके अपना राइट शेयर कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपना राइट शेयर किया, जो उसको सही लगता है, उसको यहाँ से एनर्जी कौन सी मिली कि तुम गलत। फिर धीरे धीरे उसने कोई और आके बात बताई, फिर उसको वो एनर्जी मिली। धीरे धीरे उन्होंने बताना बंद कर दिया। हमने सोचा मैंने डांटा, बच्चा सुधर गया। उन्होंने बंद नहीं किया, बताना बंद किया। दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। बच्चों को आज अगर प्रोटेक्ट करना है, उनका ध्यान रखना है, देयर इज ओनली वन वे। दे शुड बी एबल टू कम एंड टेल अस एवरीथिंग, एंड दे आर रेडी टू कम एंड टेल, प्रोवाइडेड वी डोंट रिएक्ट एंड गेट एंग्री। 20 साल का बच्चा एक दिन घर आया और उसने कहा, आपको पता है आज हमने पार्टी में सिगरेट ट्राई की। उस दिन घर में क्या हुआ होगा? सिगरेट पीना गलत? सिगरेट पीना गलत? यस और नो? यस। 20 साल के आप हैं, आपके आसपास सब पी रहे हैं और आपको भी कहते हैं लेने के लिए, और अगर आप नहीं लेते हो तो आपका मजाक भी उड़ाते हैं, आपको रिडिक्यूल भी करते हैं। उस टाइम करने का मन करना गलत? लेने का मन करना गलत? यस? यस और नो? अगर यही बात उस दिन की होती, आई अंडरस्टैंड यू फेल्ट लाइक हैविंग इट, आई अंडरस्टैंड एवरीबडी वॉज प्रेशराइजिंग यू, सो यू succumbed, which means you are right. Cigarette is wrong. We didn't say cigarette is wrong, we said you are wrong. We didn't say cigarette is wrong, we said you are wrong. वो हमसे दूर हो गया, सिगरेट के नज़दीक हो गया। हमें क्या करना था? अपने नज़दीक करना था, सिगरेट से दूर करना था। हमने उसको अपने से दूर कर दिया, एडिक्शन के नज़दीक कर दिया। Every soul needs appreciation, acceptance, approval. Criticism वही आत्मा हैंडल नहीं कर सकती। वो सब सच बोलने के लिए रेडी हैं, प्रोवाइडेड हम सच सुनने के लिए रेडी हैं। हमारे पास कितनी सारी ईमेल्स आती हैं बच्चों की, उनकी प्रॉब्लम्स, उनसे कोई गलती हो गई, वो लास्ट लाइन क्या लिखते हैं? प्लीज माई पेरेंट्स शुड नॉट कम टू नो। हु विल हेल्प देम? फिर हर स्कूल में आ गए काउंसलर, तो बच्चा पेरेंट्स से बात करने के बजाय काउंसलर के पास जाने लगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पेरेंट एंड अ काउंसलर? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ पेरेंट एंड अ काउंसलर? कभी आपके साथ ऐसा सीन हुआ है कि आपके रिश्तेदार या दोस्तों के बच्चे अपनी गलती लेकर आपके पास आते हैं एंड हम उनको कितने प्यार से बैठ के समझाते हैं, उस वो ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। लेकिन अपना बच्चा आ जाए वही गलती लेके, हुआ कैसे ऐसा? जो व्यवहार हम दूसरे के बच्चे के साथ कर सकते हैं,
वो हम अपने बच्चे के साथ नहीं कर पाते. We are able to counsel other people's children. Other people are able to counsel our children, but we are not able to counsel our own children. What's the difference between the counselor and the parent? What's the difference, counselor and parent? हाँ जी? Just imagine, आपसे कोई गलती हुई है, अपने आप को उस जगह में रखते हैं. हमारे से कोई गलती हुई है, बहुत ही बड़ी गलती हुई है. What do we need that time? What do we need that time? Huh? Understanding, acceptance or compassion, और मिलती है डांट. जीवन में दुनिया ने बिलीफ सिस्टम ये बनाया कि जितनी बड़ी गलती उतनी ज़्यादा डांट. एंड एक्चुअली व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? जितनी बड़ी गलती, बोल दो, जितनी बड़ी गलती उतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट. लेकिन वो तो हम तब दे पाएंगे अगर जीवन की छोटी छोटी बातों में हम ऐसे ऐसे नहीं होंगे सारा दिन. फिर शाम को सडनली हमें एक बड़ी गलती पता चले, हाउ विल आई बी एबल टू रिमेन स्टेबल? जितनी बड़ी गलती उतनी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है. सपोज आई स्टार्ट क्लाइंबिंग डाउन फ्रॉम हियर नाउ एंड आई मिस अ स्टेप एंड आई फॉल. इमीडिएटली क्या करना है? I fall. I've made a mistake. I fall. So what is immediate action needed? उठाना, देखना चोट लगी है तो उसको ठीक करना, या वहाँ खड़े होकर कहना दिखा नहीं. We do that. Someone has made a mistake. They've just fallen. They are in pain. They are in fear. And we say पता नहीं था, ऐसे नहीं करना. क्या आप वहाँ खड़े होकर लेक्चर देंगे? दिखा नहीं, दिखती नहीं, इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ी दिखी नहीं. If we do that, even if you're telling me the right thing, because I am in pain, will I be able to listen to you? Never give advice to people when they are in pain. क्योंकि उस समय उनका मन अपने दर्द पर है, आपकी एडवाइस नहीं सुन रहा वो बिल्कुल भी. So what's the need of the hour? पहले first pick them up, support them, heal them. फिर धीरे से कहना अगली बार ध्यान से चलना. वो तो मुझे ऑलरेडी पता है. You know, actually nobody needs advice. They already know what is right, but everybody needs love, everybody needs support, everybody needs healing. Just yesterday एक बहन सेंटर पर आती है, गाड़ी चलाकर आती है. वो सेंटर से बाहर जा रही थी, उसने कहीं ठोक दी गाड़ी, तो अच्छा खासा डेंट पड़ गया. वो बैठ गई. नाउ आई हैव टू टेल माई हस्बैंड. ऐसे टेल. अब वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कल से मुझे गाड़ी देंगे या नहीं देंगे, कितना खर्चा होगा. शी वेंट ऑन क्रिएटिंग सो मच एंग्जाइटी एंड शी जस्ट पिक्ड अप द फोन, कॉल्ड हिम अप एंड ही जस्ट सेड, अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ. दिस इज व्हाट एवरी सोल नीड्स. बिकॉज जो गलती है वो तो ऑलरेडी हो चुकी है. एंड गलती किस चीज़ की होती है? कोई धन की गलती होती है, कोई चीज़ की गलती होती है, यही तो गलतियां होती हैं. लेकिन हम अटैक कहाँ पर करते हैं? एक फॉर्मूला बना के देखें आज से. जितनी बड़ी गलती, एंड दैट्स नॉट ओनली टू फैमिली एंड टू चिल्ड्रन बट इवन एट वर्क. सोचो, someone's made a mistake and they're walking into your cabin. उनकी मन की स्थिति कैसी होगी? Fear, guilt. And then they enter into your cabin and you say, कोई बात नहीं, हो गया ना, हो जाता है, हम सब सीख रहे हैं, हमारे से भी हुई थी. हमने तुरंत आत्मा को यहाँ से यहाँ तक उठा दिया. Our role is to empower souls, not to control and change people. लोग दर्द में हैं, उनको दर्द को डांट के और दर्द में नहीं भेजा जा सकता. आज हर एक जो हमारे यहाँ काम पे भी आ रहा है, उसके घर में एक कहानी चल रही है या नहीं चल रही है? किसी के घर में कोई बीमारी है, किसी के घर में धन की प्रॉब्लम है,
किसी के घर में पढ़ाई की प्रॉब्लम है, किसी के घर में झगड़ा चल रहा है, वो सारे उस दर्द से हमारे यहाँ आता है काम करने, और हम उसको डांट भी देते हैं फिर उस पर। तो ओवरऑल हम ही एक दूसरे की एनर्जी को क्या करते जा रहे हैं। हम सबके पास पावर है, या तो हम एक दूसरे की एनर्जी को डिप्लीट कर सकते हैं या एक दूसरे की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। Now we have to choose which role we are ready to take. If we deplete other people's energy, our energy will also get depleted. If we heal other people, our energies will go on increasing. तो सबसे पहले फायदा किसका? तो आज से हम व्रत करते हैं, 9 दिन नहीं खाना, ये बहुत इजी है। अब हम व्रत करते हैं 9 दिन गुस्सा नहीं करना। यस, रेडी? चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आसपास सब लोग खाना भी खाएं तो भी मैंने नहीं खाना। मेरा क्या है? व्रत है। इट्स ओनली अ कंडीशनिंग। लुक एट द एंटायर कस्टमर केयर इंडस्ट्री। आपको फ़ोन आते हैं लोगों के, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, बैंक अकाउंट खोल दो, ये कर दो, वो कर, सारा दिन आते हैं ना। लोग उनके साथ कितनी बुरी तरह से बात करते हैं या नहीं करते? और स्पेशली किसी को गुस्सा करने का चांस नहीं मिला तो चलो इनको से, और इनको गुस्सा करना तो सबसे अच्छा है, क्योंकि 100% गारंटी है कि वहां से रिटर्न में कुछ नहीं आने वाला है। हाउ आर दे एबल टू डू इट? हाउ आर दे एबल टू डू इट? दे आर वन ऑफ अस, दे आर वन ऑफ अस। उनके साथ कोई कैसे भी बात करे, अब्यूज़ भी कर दे, फ़ोन भी टपक दे, वो कहेंगे ओके सर मैं शाम को फ़ोन करता हूँ। करते हैं ऐसे? करते हैं नहीं करते? हाउ आर दे एबल टू डू इट? दे आर वन ऑफ अस। व्हाट इज़ द कंडीशन? इट्स ओनली अ कंडीशनिंग ना। व्हाट इज़ द कंडीशनिंग? अगर मैंने गुस्सा किया तो मेरी नौकरी गई। कितनी सिंपल कंडीशन है। सिर्फ ये एक कंडीशनिंग पूरी कस्टमर केयर इंडस्ट्री, पूरी सर्विस इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, सब इतने सारे लोग हैं, दे आर वन ऑफ अस। ये अलग बात है कि वो अंदर कर लेते हैं, बाहर नहीं करते। अगर हम भी ऐसी कंडीशनिंग करें, गुस्सा किया, उनकी कंडीशनिंग क्या है? गुस्सा किया नौकरी गई। अब हम अपनी कंडीशनिंग करते हैं। गुस्सा किया तो क्या क्या गया? गुस्सा किया तो क्या क्या गया? एक, खुशी गई। दूसरा, गुस्सा किया सेहत गई। तीसरा, गुस्सा किया रिश्ते गए। अब इन तीनों के सामने नौकरी क्या? नौकरी तो फिर दूसरी मिल जाएगी। शरीर जल्दी जल्दी नहीं मिलता अच्छा, रिश्ते चेंज नहीं हो पाते, एक बार गलती हो गई। तो अगर इतनी छोटी कंडीशनिंग इतने मिरेकल क्रिएट कर सकती है, तो हम अगर अपनी कंडीशनिंग कर दें तो हम नहीं मिरेकल क्रिएट करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? प्रोवाइडेड वी आर 100% कन्विंस्ड दैट दिस इज डैमेजिंग फॉर मी एंड डैमेजिंग फॉर माई फैमिली एंड द पीपल हु वर्क अराउंड मी। द मिनट आई एम कन्विंस्ड, इट्स क्विट, इट्स ओवर। बट इफ आई एम नॉट कन्विंस्ड एंड मैं अंदर से अपने आप को बोलूँ ठीक है जो ये बहन बोल रही है, लेकिन कभी कभी तो करना ही पड़ता है। जैसे ही मन ने कहा कभी कभी तो करना ही पड़ता है, बैठ गया वो। इट्स लाइक जब दिवाली की सफाई नहीं करते तो चीज़ें कुछ कुछ निकालते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को हम उठा के सीधा फेंक देते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को हम रख देते हैं, कभी कभी यूज़ होती है। अब वो चीज़ें हमारे घर में कई बार सालों साल पड़ी रहती है, ओनली बिकॉज द माइंड सेज कभी कभी तो यूज़ होती है। इफ़ आई टेल माई सेल्फ टुडे कभी कभी तो करना ही पड़ता है, तो वो फिर रोज़ आने वाला है। एंड इफ़ आई टेल माई सेल्फ दिस इज़ डैमेजिंग फॉर मी एंड फॉर एवरी वन अराउंड मी, इट्स क्विट, देन इट्स गॉन। रेडी टू डू? रेडी टू डू? हो सकता है काम नहीं हो, सिर्फ काम करवाने के लिए अपनी खुशी को नहीं वेस्ट करना। काम अभी नहीं तो 5 मिनट बाद हो जाएगा। हमारे को जीवन में आदत क्या पड़ गई है, सब जल्दी 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 करने के।
बॉम्बे में तो वैसे भी जल्दी करो, लाइक वो इज मोर लाइक अ हेलो एंड अ गुड मॉर्निंग, जल्दी करो. एवरीवन सीम्स टू बी सेइंग टू ईच अदर जल्दी करो. It's not very healthy for us. We have to understand it's not healthy for the mind and the body to keep saying jaldi karo. The mind and the body has stopped being at its normal pace. It has to be at a normal pace. If we are getting late, the driver is driving to the best of his ability, but we will sit piche and say jaldi karo. Do you think it only becomes a pattern, na? ये करने से हमारा संस्कार बन जाता है. So we just need to ease down little bit. That's the simplest way to be healthy and happy. तो कितने दिन का व्रत करें आज? 9 दिन. हर एक चूज करे, क्योंकि वो भी हर एक अलग अलग करता है ना, नवरात्रि भी. और 9 दिन में कई बार क्या करते हैं, बस 9 दिन, 10वां दिन आने दो, फिर मैं खा पी सकता हूँ सारा जो मैंने कर डाला, है ना. कुछ लोग तो 12 o'clock वेट करते हैं, हो गया 9 दिन पूरा. उतना भी सही. You know why these festivals are there? They are there so that they increase our willpower. हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि हम जब चाहें, जो चाहें, जितने समय के लिए चाहें उसको छोड़ सकें. That willpower should be there. इसीलिए ये सब rituals और festivals आते हैं. तो हम सब अब अपने आप के लिए चूज करो कितने दिन का होमवर्क उठाने के लिए रेडी है. Everyone choose. Someone can choose 1 day, someone can choose 5 days, someone can choose 9 days. But if you choose, then you are going to do it for yourself. तो कितने दिन का उठाते हैं? नहीं, whole life का नहीं उठाना बिल्कुल भी. It will be over by tomorrow morning. It has to be a very focus oriented homework. कुछ एक दिन उठाना है और उसके ऊपर सिंसियरली काम करना है. मॉर्निंग में बैठकर अपने दिन को विजुअलाइज करना है. दैट इज मेडिटेशन. अब अगर ये 9 दिन के अंदर अंदर हम सेंटर पर आकर साथ में मेडिटेशन भी सीख लेते हैं, क्योंकि बैटरी क्या है, थोड़ी सी आज डिप्लीटेड है. तो डिप्लीटेड बैटरी से थोड़ी मेहनत जब करवाते हैं ना, तो वो थोड़ी थकने लगती है जल्दी. लेकिन अगर उसी बैटरी को पावर मिल जाए एक्स्ट्रा, तो फिर वही काम करना थोड़ा सा और इजी और नेचुरल हो जाता है. अगर हम साथ साथ मेडिटेशन भी सीख ले आके 3 दिन 4 दिन भी हम आधा पौना घंटा निकाल कर अगर आते हैं, क्योंकि आप जहाँ जहाँ रहते हैं आपके नज़दीक एक सेंटर होगा. अगर हम मेडिटेशन सीखें तो मेडिटेशन मीन्स आई द बैटरी, द सोल, कनेक्टिंग टू द पावर हाउस. मुझे ताकत की ज़रूरत है, मुझे वो लेनी पड़ेगी. तो जब हम सेंटर पर आते हैं हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक ज्ञान, नॉलेज, एंड एक पावर. ये 2 चीज़ें हमारे लिए उस चीज़ को करना बहुत इजी कर देती हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ नॉलेज जो मिलती है कि एक्चुअली आई एम अ पीसफुल सोल. गुस्सा मेरी नेचर तो ही नहीं कभी भी. एंड सामने वाला जो ये है, ये भी पीसफुल सोल. ऊपर से लग गए थोड़े से acquired संस्कार. This is not our original nature. Instead of saying every time to ourselves, हम तो गुस्से वाले हैं, गुस्सा तो आता ही है. No, I am a peaceful soul. And that's why the greeting of the Brahma Kumari says Om Shanti, which means I am a peaceful soul. तो अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल के मेडिटेशन भी सीख लें साथ में, तो फिर बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाती है. चार्ज बैटरी से कुछ भी करवाओ वो बहुत ईजिली कर सकती है. तो हर रोज़ सुबह अगर हम मेडिटेशन में बैठें, अपने दिन को विजुअलाइज करें, फिर सारा दिन का एक अटेंशन और एक चार्ट रखें. हर 1 घंटे के बाद अपनी चेकिंग करें कि ये घंटा कैसा बीता. अब नेक्स्ट घंटे के लिए अपने आप को तैयार करें. तो वेरी सून पीसफुल एंड काम रहकर अपना काम करना हमारा संस्कार बन जाएगा. कोई भी चीज़ बार बार करने से एक संस्कार बनती है. गुस्सा करना बार बार करने से संस्कार बना. अब एक नया संस्कार क्रिएट करना है. थोड़े दिन मेहनत, थोड़े दिन के बाद आप कहेंगे आता ही नहीं गुस्सा, आवाज़ ऊंची होती ही नहीं, क्योंकि अब वो संस्कार क्या हो जाएगा, इस सीडी से डिलीट. वी आर चेंजिंग आवर संस्कार्स. रेडी टू डू?
अगर हम अपने गुस्से को कम करना चाहते हैं, छोटी सी चीज़ जो उसमें बहुत हेल्प करेगी इज़ द काइंड ऑफ फूड वी ईट. जैसा अन्न वैसा मन. तो अगर अन्न में एनर्जी वैसी वाली है तो फिर मन को शांत रखने में और मुश्किल हो जाता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है. सात्विक अन्न अगर हम खाएंगे तो फिर मन भी सात्विक होना बहुत ईजी हो जाता है. अगर हमें यहाँ बांधा जाए और हमें पता है कि 5-6 दिन बाद हमें मारने वाले हैं, तो अंदर कैसी थॉट्स चलेंगे? कैसी थॉट्स चलेंगे? वी नो वी आर गोइंग टू बी किल्ड आफ्टर 5 days. अंदर कैसी थॉट्स रहेंगे? फियर और फियर, हेट्रेड, एंगर, रिजेंटमेंट. मारो और खाओ तो सिर्फ प्रोटीन्स नहीं मिलने, साथ में मिलती है वो वाइब्रेशन ऑफ फियर, एंगर, हेट्रेड, रिजेंटमेंट. जैसा अन्न वैसा मन. अगर हाई एनर्जी फूड खाते हैं तो मन के लिए हाई एनर्जी पे रहना इजी हो जाता है. जब किसी के घर में डेथ होती है, जब तक वो डेड बॉडी घर पे होती है, उस घर में खाना नहीं बनता ना. नहीं बनता ना. क्या रीज़न होगा कि उस टाइम पे खाना नहीं बनता घर पे? क्या रीज़न होगा? हम सब फॉलो करते हैं ना कि उस टाइम पे खाना नहीं बनता. फिर हम फ्यूनरल पे जाते हैं, राइट? फ्यूनरल पूरा करते ही सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? पहले हम नहाते हैं, पहले खाना नहीं खाते. पहले तो शमशान घाट पे वहीं हाथ पैर धोते हैं, राइट? फिर घर आके सबसे पहले नहाते हैं. इस सब के पीछे क्या लॉजिक होगी? What are we washing off actually? We are washing off all that negative vibrations, the toxic, the negative energy. जब एक डेड बॉडी घर में होते हुए खाना नहीं बन सकता, तो एक डेड बॉडी का खाना कैसे बन सकता है? Shouldn't we think? When it is so toxic कि उसके होते हुए हम खाना नहीं बना सकते, तो उसका ही तो खाना हम बना रहे हैं. उसका इम्पैक्ट हमारे मन पर नहीं पड़ेगा. Does an animal have thoughts and feelings? Does an animal have thoughts and feelings? क्या एक एनिमल को आपके घर में पेट से गुस्सा आता है, हर्ट होता है, डर लगता है? वही सब हम कंज्यूम कर रहे हैं. एंड वी आर सेइंग दिस इज हेल्थ. प्रोटीन्स किसी भी और चीज़ में मिल जाएगी, लेकिन जो यहाँ से एंगर, फियर मिलता है, फिर उसको निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है. एक एक्सपेरिमेंट करके देखें 3 महीने के लिए. सात्विक डाइट. सात्विक डाइट. और सात्विक मतलब सिर्फ वेजिटेरियन भी नहीं. सात्विक मतलब जो बहुत श्रेष्ठ मन से बनाया हुआ हो. आजकल हम में से बहुत लोग बाहर का खाना खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं ना. जो बाहर खाना बनाता है उसकी कॉन्शियसनेस क्या होती है? जैसा अन्न वैसा मन है. जो बाहर खाना बना रहा है उसकी कॉन्शियसनेस क्या होती है? कमाने की. मीन्स आप खाओ, आई विल अर्न. द मोर वी हैव स्टार्टेड ईटिंग आउट, जस्ट थिंक अबाउट दिस, द मोर वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग ईटिंग आउट, द मोर वी आर थिंकिंग ओनली अबाउट मनी. बिकॉज हम अन्न वो वाला खा रहे हैं जो पैसे के लिए बनाया गया है, तो हमारे माइंड पे भी पैसा ही डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया. फिर अगर घर में भी खाना बन रहा है तो हमारे पास पैसा इतना आ गया कि हमने घर पे लोग हायर कर लिए खाना बनाने के लिए. तो वो भी खाना किस लिए बना रहे हैं? आप खाओ, मैं कमाऊँ. एक माँ घर में खाना बनाती है, उसकी वाइब्रेशन क्या होती है? The children of today are not getting the love and the power and the blessings which we were getting 3 times a day. Food is not proteins, fats, carbohydrate. Food is energy and emotions. उनको वो मिल ही नहीं रहा, तो उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी? इज़ इट पॉसिबल कि हम प्यार से उनके लिए खाना बनाएं? कम से कम घर में एक टाइम तो बनाएं. एंड फिर अगर हम वो खाना बनाने को परमात्मा की याद में खाना बनाएं, जो मंदिर में प्रसाद मिलता है उसमें वाइब्रेशन कौन सी होती है? उसमें वाइब्रेशन कौन सी होती है? पीस की होती है ना. व्हाई नॉट वी स्टार्ट कुकिंग प्रसाद एवरी डे एट होम?
Can we start cooking prasad every day at home? क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन. अगर हम परमात्मा की याद में खाना बनाएं, घर में भजन चलाएं किचन में, उस टाइम पे खाना बनाने को एक पीसफुल रिचुअल बना दें, सारे घर के लोगों का मन शांत होना शुरू हो जाएगा. The easiest way to do anything to people is do it through the food. जो आपको उनको समझाना है खाने में डाल दो, समझ जाएंगे वो. खाना plays a very very powerful role, very powerful role. अगर अन्न में वो peaceful vibrations डाल दी जाएं, सब लोग जो वो अन्न खाएंगे उनका माइंड पीसफुल होना शुरू हो जाएगा. क्यों ना हम अपने घर के लोगों को प्रसाद बना के खिलाना शुरू करें. कर सकते हैं. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. दिस इज़ व्हाट राजयोग टीचेस अस. वेरी स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी चीज़ें बट विच क्रिएट मिराक्युलस चेंज. अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में अपनी एनर्जी को कंजर्व करना शुरू करते हैं, तो आत्मा की तो ओरिजिनल क्वालिटी पीस है ही. इट टेक्स नो एफर्ट फॉर द सोल टू बी इट एट्स ओरिजिनल स्टेट. डिसाइड कर लिया कितने दिन का व्रत. ऐसे नहीं करना, ऐसे आए थे ऐसे ही बाहर जाना है. नॉट अलाउड. नेक्स्ट टाइम नहीं आ सकते. नहीं तो हम यहाँ तभी आ सकते हैं इफ़ वी आर गोइंग टू टेक इट अप एज अ होमवर्क एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. नेक्स्ट 24 आवर्स, चलो ओनली 24 आवर्स, ओनली 24 आवर्स, चाहे कुछ भी हो जाए. एंड कुछ भी विल मीन देन कुछ भी. I will remain stable and face the situation and person. 24 hours? Yes? How many ready to do for 24 hours? And then tomorrow night at the same time tell yourself, if I can do it for one day, I can do it for any number of days because I did it for today. किसी और ने तो ये किया ही नहीं, ये मैंने किया. तो अगर मैं एक दिन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कभी भी कर सकती हूँ. It's only a matter of priority and taking that decision. And take out that little bit of time to come and learn the meditation. Because that's going to give health very easily. Less effort, more result. So let's sit back and visualize the next 24 hours. देखें अपने आप को. I the being. Soul on a journey. अनेक जन्म लिए, अनेक संस्कार बने. हर एक आत्मा जो मेरे साथ है, हर एक की अपनी अपनी यात्रा है, हर एक के अपने अपने संस्कार हैं. उनके संस्कार, मेरे संस्कार अलग. अपने अपने नज़रिए से दोनों सही हैं. Bring any one person in front of you, any one soul, and any one habit जो आज तक हमें इरिटेशन होती थी, उसी आत्मा को सामने लेकर आए, उनके संस्कार को सामने लेकर आए. From today, I accept this संस्कार. आज से इस संस्कार का मेरे मन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. I will remain stable. My role is to heal souls. प्यार, शक्ति, सपोर्ट सबको देना. चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, हमारा रोल उनको उठाकर उनको हील करना है. अगले 24 घंटे लुक एट योरसेल्फ. यहाँ से बाहर जाते हुए, गाड़ी निकालते हुए, घर पहुँचकर कल सारा दिन सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन. I am a peaceful soul
And today my every role, my every scene, my every dialogue will be from that consciousness of peace. I am writing a destiny of happiness, health, and beautiful relationships. I am making this decision today. Om Shanti. आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे. यहाँ से घर जाने तक ऐसे ही साइलेंस में जाएंगे. वो सुबह 15-20 मिनट साइलेंस में रहते हैं ताकि जो कुछ मनन किया, सोचा, डिसाइड किया वो बैठ जाना चाहिए अंदर. अच्छा तुरंत बातें की, उड़ गया. Let the seed go down into the subconscious mind. 15-20 मिनट अपने आप से सिर्फ बातें हैं. मुझे किधर इरिटेशन होती है, कहाँ मैं रिएक्ट करती हूँ, कहाँ मुझे चेंज करना है, किसके नज़रिए को मुझे समझना है. 15-20 minutes appointment with myself. Possible? Driving home in silence? Yes. Have a beautiful next 24 hours. And you will be surprised to see your own magical capacity which you have not seen till today. Because each one of you is going to be able to do it. उसकी तो 100% गारंटी है. क्योंकि जो डिसाइड करता है वो कर लेता है. जो डिसाइड करता है वो कर लेता है. एंड अपना पोटेंशियल खुद को नज़र आता है. थैंक यू सो मच. ओम शांति. I'm here to propose a vote of thanks for this evening for Shivani Ben, for Sister Shivani Ben, for spending this evening. But before I do that, a few thoughts. First of all, about my sister Amita and her relationship with Bombay Chartered Accountants Society. She passed away on 31st January 1987. She met with an accident on 20th January 1987. For a lot of us, she was last alive on 20th January 1987. That time I was in the US, and in a letter that she sent to me, she has written, "Incidentally, the books mentioned below are necessary for our research on non-profit organizations for the Bombay Chartered Accountants Society." And she's given me a list of books. And soon after that, she's written that if possible, can you bring this along? If it is too voluminous, can you send a parcel to reach us as fast as possible? So no sea mail, please. And please make sure that the bill is made in our society's name. So on the last day that she was alive, it was Bombay Chartered Accountants Society, which was definitely on her mind. My relationship with everybody who has come and spent an evening with us year after year after year. Few words in Gujarati. અમારા આંસુઓની ખારાશથી અમિતાની યાદોની વસંત નહીં થઈ શકી હોત. It is people like Haribhai Kothari, people like Nipun Mehta, people like Shivani ji, who have helped us to remove the salinity from our tears and create this lovely garden of flowers with which we remember our sister every year. And finally, a short poem. First four lines are for my sister Amita. The last 4 lines are for Shivani ji. It's not written by me, but it says, "I didn't ask for it to be over, but then again, I didn't even ask for it to begin." And that's the way it is with life. So thank you, Amita, for being a part of our lives. As some of the most beautiful days come completely by chance, but even the most beautiful days eventually have their sunset. Thank you, Shivani ji, for this most beautiful evening. Amita was with us. God gave Amita to us for 27 years. It is with all of you
and your presence, your good wishes, your thoughts, that we have been able to keep her alive for 28 years after that. Thank you. Om Shanti.